Prime Minister Modi to address the nation today, and this would be Prime Minister's sixth address to the nation since the outbreak of the COVID-19 pandemic. Indian and Chinese military officials hold third round of Corps commander level border talks at Chushul in Ladakh. The two sides are expected to deliberate on the implementation of agreement on arrived at the first round of talks. The French defense minister expresses solidarity with India on the Galwan face-off, condoles martyrdom of 20 soldiers at Galwan. Madurai bench of the Madras High Court deputes revenue officers to the Satankulam police station to preserve the clue materials seized over concerns of evidence tampering in the death of the father-son duo. The court orders the DSP from Crime Branch CID to take up the investigation. Tamil Nadu government replaces the Thoothukudi SP. India's first successfully developed COVID-19 vaccine candidate, Covaxin, gets approval for human trials. Covaxin developed by Bharat Biotech in collaboration with the ICMR and the NIV Pune. The human clinical trial is scheduled to start across India in July. Government issues Unlock 2.0 guidelines for period between 1st to 31st of July. Schools and colleges, metro rail, cinemas, gyms and bars to remain shut. The domestic flight passenger train services to be further expanded in a calibrated manner. Strict lockdown to continue in the containment zones. TikTok removed from Apple's App Store and Google Play Store after government bans 59 mobile applications including TikTok, Cam Scanner, ShareIt over public concerns on data security. Says the banned applications are prejudicial to sovereignty, integrity and defense of the country. Also harms the privacy of the citizens. The recovery rate of COVID patients in India continues to show steady improvement, crosses 59%. The active cases in the country more than 2,15,000. The global COVID-19 cases over 1 crore 2 lakh with more than 5,04,000 deaths. The WHO chief warns pandemic is still speeding up. Hello and welcome. You're watching Doordarshan News with me, Nancy Kohli. A top story: Prime Minister Narendra Modi will address the nation today. The Prime Minister's office has tweeted via its Twitter handle that the Prime Minister will address the nation at 4 p.m. today. His address comes against the backdrop of the country entering the Unlock 2 from 1st July, for which guidelines were issued by the Union Home Ministry on Monday night, further easing the restrictions imposed due to the COVID-19 lockdown. This would be Prime Minister's sixth address to the nation since the outbreak of the pandemic. In his recent interaction with the chief ministers, he had urged them to think about the phase 2 of unlocking to boost the economy hit by the COVID-19 pandemic and the nationwide lockdown. In his monthly Mann Ki Baat address on Sunday, Prime Minister had urged people to be more vigilant in the unlock phase and take unnecessary precautions, stressing that not doing so will put at risk their lives and the lives of others. The French defense minister has written a letter to the defense minister Rajnath Singh expressing her condolences on the martyrdom of the 20 soldiers in the Galwan Valley. Expressing deep sorrow over the incident, she said that it was a deep shock on the soldiers, their families and the entire nation. Describing it as a difficult time, she expressed firm and friendly support from the French armed forces. Describing India as a strategic partner in the region, she reiterated the resolve of France's deep solidarity with India. The French Armed Forces Minister also expressed her readiness to meet Rajnath Singh in India at his invitation to follow up on their ongoing discussions. पिछले बार ही इस बात का अंदेशा था कि इस वर्ष टिड्डी का प्रकोप
गत वर्ष की तुलना में और अधिक होगा और इसलिए केंद्र सरकार पहले से ही इस तैयारी में लगी थी। केंद्र सरकार ने हाई लेवल मीटिंग की जिसमें सभी राज्यों के संबंधित अधिकारी, जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। लगातार मंत्रियों के द्वारा मुख्यमंत्रियों से चर्चा की गई, सचिव के द्वारा चीफ सेक्रेटरी से चर्चा की गई और ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्तर पर लगातार जिले के अधिकारियों से निरंतर संपर्क बना रहता है। और उसी समय सभी राज्यों से अपेक्षा की गई थी कि जो प्लान हाई लेवल कमेटी में बनाया था उस प्लान को राज्य में ठीक प्रकार से क्रियान्वित हो सके। और इसलिए राज्य इस बार टिड्डी के प्रकोप को लेकर पूरी तरह जागरूक हैं। सब जगह जिला प्रशासन पूरी जागरूकता के साथ काम कर रहा है और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ उनका तालमेल ठीक प्रकार से बना हुआ है। पिछले बार जब ये महसूस किया गया कि टिड्डी का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा होगा तो हमारी तैयारी भी ज़्यादा रहनी चाहिए और इसलिए राज्य सरकारों को संसाधन उपलब्ध हों। इस दृष्टि से केंद्र सरकार ने टिड्डी प्रकोप को नियंत्रण करने की दृष्टि से अगर राज्य सरकार को आवश्यकता लगती है तो एसडीआरएफ के पैसे को वो उपयोग कर सकते हैं। ये अनुमति भी राज्य सरकारों को प्रदान की गई जिससे उनको वहाँ ट्रैक्टर लगाना है, अन्य काम करना है तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। हमको भी एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर फंड और उस समय ये भी आवश्यकता महसूस की गई थी कि हमको मेन पावर भी बढ़ाना पड़ेगी, मशीन की पावर भी बढ़ाना पड़ेगी और वाहन भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो मशीन के लिए ब्रिटेन की एक कंपनी को हम लोगों ने ऑर्डर दिया, लेकिन बीच में लॉकडाउन की स्थिति आ गई और उनके यहाँ भी सारी फैक्ट्रियाँ बंद थीं, इसलिए वो डिलीवरी में थोड़ा विलम्ब हुआ है। 15 मशीनें हमारे पास और अतिरिक्त आ गई हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 45 पहले थी, 15 ये आ गई, तो 60 ग्रुप केंद्र सरकार के अभी वर्तमान में कार्यरत हैं और 11 जुलाई तक 45 मशीनें और प्राप्त हो जाएंगी। उसके बाद हमारी ये क्षमता और बढ़ेगी। 55 वाहन नए भारत सरकार ने खरीदे हैं और मानव संसाधन बल को भी बढ़ाया है। इसके साथ ही हम लोगों की यह भी कोशिश थी कि जो मशीन से और वाहन से उपयोग करके टिड्डी के प्रकोप को रोकना और उसे मारना, उसके अतिरिक्त भी कुछ प्रयास किए जाएं। तो उसी हाई लेवल मीटिंग के समय ये भी हुआ कि ड्रोन का भी उपयोग किया जा सकता है, जहाज का कोई उपयोग हो सकता है क्या, हेलीकॉप्टर का उपयोग हो सकता है क्या। तो लगातार केंद्र सरकार के अधिकारीगण इस दिशा में काम कर रहे थे और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि जब इस बार टिड्डी का प्रकोप हुआ तो हिंदुस्तान की सरकार ने सबसे पहले ड्रोन का उपयोग किया और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अनेक बाधाओं के बावजूद भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इस प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी और सिर्फ अनुमति नहीं दी, रात्रि को भी ड्रोन का उपयोग कर सकें इसकी भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने हम लोगों को अनुमति दी और उनका उपयोग आज टिड्डी को मारने के लिए किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर का आज उपयोग शुरू हो रहा है। यह भी मैं समझता हूँ इतिहास में पहली बार हमारे यहाँ इसका हेलीकॉप्टर का उपयोग टिड्डी प्रकोप के नियंत्रण के लिए किया जा रहा है
आज ये हेलीकॉप्टर मिल गया है, इनसे अनुबंध हो गया है और आज ये अपने मैदान में जाकर अपने काम को प्रारंभ करेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि जितने प्रकार के संसाधन की आवश्यकता थी उन सब संसाधनों को जुटाने का प्रयत्न किया है और 45 मशीनें जो 11 जुलाई तक हमारे को मिल जाएंगी, वो मशीनें भी उपयोग में आएंगी तो निश्चित रूप से हमारी ताकत और बढ़ेगी। और इसके साथ ही 4 मशीनें ऐसी जो हेलीकॉप्टर से स्प्रे कर सकें। तो भारत सरकार ने वायुसेना से हेलीकॉप्टर लेने की बातचीत की थी और वो बात हो गई है, लेकिन चूंकि वो मशीन की उपलब्धता नहीं थी इस वजह से वो हेलीकॉप्टर का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है कि ये हेलीकॉप्टर हमको मिल गया। ये इस काम को तकनीकी रूप से ठीक प्रकार से कर सकता है, तो आज ये हम काम प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन जो 4 मशीनें ब्रिटेन को ऑर्डर की हैं वो हम लोगों को शायद अगस्त सितंबर तक मिलेगी। तो निश्चित रूप से इस बेड़े में एक और बड़ी ताकत बढ़ेगी और वो मशीनें जब आ जाएंगी तो एक ये हेलीकॉप्टर है और 4 हेलीकॉप्टर वायुसेना के भी इसमें जोड़ेंगे तो इस प्रकोप से निपटने में और इस पर नियंत्रण पाने में निश्चित रूप से सफल होंगे हम लोग। और मैं आप सबके माध्यम से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या आसपास के सभी राज्य जहां इस प्रकार की आशंकाएं हैं वहां मैं किसान बंधुओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार इस परिस्थिति में पूरी तरह जागरूक है और हर संभव इस दिशा में प्रयास कर रही है कि टिड्डी का प्रकोप हमारे किसानों की फसल को नुकसान न कर पाए। और राज्य सरकारें भी इस दिशा में पूरी ताकत के साथ प्रवृत्त हैं और राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का पूरा कोऑर्डिनेशन